اللہ کو راضی رکھا کریں، کیونکہ جب رب راضی تو سب راضی۔ چیزیں اس مہینے میں آ رہی ہیں، ایک آ رہی ہے عید اور دوسری آ رہی ہے میری ان برتھ ڈے۔ اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک کا 7واں پارہ ہے اور 7ویں پارے کی سورہ مائدہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 114، اور یہ نا ادھر سے شروع ہوتی ہے لیکن آپ نے پڑھنی یہاں سے ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے آپ نے نہیں پڑھنی، یہ والی نہیں پڑھنی، بلکہ یہاں سے پڑھنی ہے۔ یہ رزق کے بارے میں بہت زیادہ مطلب اس کے بارے میں روایتیں آئی ہیں، تو آپ ایسا کیا کریں کہ اس کی کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ نماز کے بعد پڑھیں یا کب پڑھیں یا کب نہ پڑھیں، بس آپ اس کو پڑھا کریں تو اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ نوازے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں اور پھر آپ اس کو خود پڑھ لیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دنوں کے بعد آج میں اپنا ولاگ بنا رہی ہوں، اور کافی دن اس لیے گزرے کہ بس کچھ شروع نہیں ہو پا رہا تھا، کچھ بیچ میں رہ گیا تھا اور ہو نہیں پا رہا تھا میرے سے، تو میں نے کہا چلیں آج شروع کرتی ہوں۔ آج ایک تو ہے جمعے کا دن اور دوسرا ہے صبح کا ٹائم۔ یہ دیکھیں صبح ہوئی ہے اور وہ چڑیا دیکھیں کتنا پیارا بول رہی ہے۔ اور تیسری بات ہے کہ آج ہے 1 مئی، مئی کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور مئی کی آج پہلی تاریخ ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کیا ہے، باقی اللہ مالک، انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا۔ اور کافی دن ہو گئے ولاگ نہیں بنا پا رہی تھی، بس کچھ رہ گئی، کچھ بتا نہیں سکتی کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن اللہ پاک آگے خیر کرے گا انشاءاللہ۔ مجھے نا یقین اللہ پہ ہے، تو جب انسان کو یقین اللہ پہ ہونا پھر سب ٹھیک ہوتا ہے۔ پہلے جب سردیاں ہوتی تھی نا تو میرے یہ جو پلانٹ ہے تو سردیوں میں مطلب ان کو اتنی دھوپ نہیں لگتی تھی اور یہ اچھے ہوتے تھے، تو اب دیکھیں گرمی کی وجہ سے یہ جل گئے ہیں۔ یہ میرا منٹ لگا ہوا ہے اور کافی ہائٹ میں بھی اتنا لمبا ہو گیا ہے، لیکن یہ گرمیوں کی تیز دھوپ کی وجہ سے نا یہ میرے پلانٹ خراب ہو رہے ہیں، تو میں نے آج نیاب کو کہا کہ ان کی ہم جگہ چینج کرتے ہیں، یا تو ان کو ایسا کرنا ہے کہ ان کو نیچے لے کے جاتے ہیں کیونکہ گرمی زیادہ ہے، دھوپ تیز ہے، اور یا پھر ایسے کرتے ہیں کہ کسی ایسی جگہ پہ ان کو شفٹ کرتے ہیں جہاں پہ ان کو دھوپ نہ لگے۔ اور ویسے چھت پہ تو ہر جگہ پہ دھوپ لگتی ہے کیونکہ ہمارا کوئی شیڈ یا اس طرح کی کوئی چیز ہے نہیں جہاں پہ ہم اس کو رکھیں۔ ادھر بھی دیکھیں ساری دھوپ ہی لگتی ہے اس ٹائم۔ اور یہ دیکھیں پینو ادھر ہے، آپ لوگ سب یاد کر رہے تھے نا، پوچھتے تھے پینو کیسی ہے، تو پینو تو یہ ہے، پینو سے آپ لوگ مل لیں، اور باقی میں نیچے جاؤں گی نا تو میں آپ کو کیسی اور مفالسہ سے بھی ملاؤں گی، وہ بھی ماشاءاللہ دونوں ٹھیک ہے۔ پینو ادھر لاؤ سلام کر لو، سلام کر لو، سلام سلام سلام۔ کوئی نہیں، میں چھت کے یہ دیکھیں، یہ پینو بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں، نیاب بھی ٹھیک ہے، ہم سب ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اور آج ہم ان پلانٹ کو چینج کرتے ہیں۔ یہ لگی ہوئی ہے، اس میں ہے ایلو ویرا اس میں پلانٹ لگا ہوا ہے، اور یہ جو ہماری بالٹی ہے نا یہ دھوپ کی وجہ سے ساری ٹوٹ گئی ہے، خراب ہو گئی ہے، تو اس کی جڑیں دیکھیں ننگی ہیں، یہ بیچاری اس کا حشر نشر ہوا ہے، تو اس کو ہم دوسری بالٹی میں شفٹ کرتے ہیں، مطلب کسی اور چیز میں اس کو ڈالتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ اس کی جو گاچی ہے نا یہ ابھی نکل گئی ہے، کیونکہ یہ بالٹی جو تھی بالکل پرانی ہو گئی تھی، ٹوٹ گئی تھی۔ یہ جو ہوتی ہے نا گھی والی بالٹی ہوتی ہیں، جیسے کہ ڈالڈا گھی ہو گیا یا لطیف، تو ان کی ایسے بالٹیاں آتی ہوتی ہیں 5 لیٹر والی، یہ وہ بالٹی تھی، اور اس میں یہ ایلو ویرا لگی ہوئی تھی، تو یہ دھوپ کی وجہ سے نا بالکل ایسے اوپر سے ٹوٹ گئی تھی، اور اب یہ دیکھیں یہ کیسے ٹوٹ رہی ہے، دیکھیں یہ دھوپ نا ایسے چیز کو کھا لیتی ہے، یہ اب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے، تو اس کو اب ہم دوسری بالٹی میں شفٹ کرتے ہیں، یا یہ 2 خالی ہمارے پاس پڑی ہیں، یا اس میں کریں گے یا دوسری میں کریں گے۔ یہ اب دوسری والی بالٹی میں شفٹ ہو گئی۔
जो एलोवेरा है वो नाब नीचे ले गई है और ये मिंट है, इसको मैं लेके जा रही हूँ। ये बाल्टी थोड़ी भारी थी और नाब से उठाई नहीं जा रही, उठाई तो मेरे से भी नहीं जा रही, लेकिन कोशिश करूँगी रोक रोक के ना ऐसे उतार के लेके जाऊँगी। काफ़ी बस नहीं वही। ये देखें प्लांट इधर शिफ्ट कर लिए हैं, ये एलोवेरा ले आए हैं और ये ज़ख्म हयात है, ये एक किस्म का कोई फ्लावर है और ये मिंट है और ये कैसी और मुफालसा। आप लोग पूछते थे ना, ये देखें मुफालसा से मिली है, मुफालसा ये और कैसी ये। और ये दोनों इसलिए खुश हैं क्योंकि प्लांट हम नीचे लेकर आए हैं तो ये इनको देख रहे हैं और इनको ना नई नई चीज़ लग रही है, क्योंकि पहले ये प्लांट छत पे होते थे तो आज नीचे आ गए हैं तो ये लोग बड़े इसे देख के खुश हैं। इनको अब पानी भी दे दिए और इंशाल्लाह अब ये मिंट और ये सारे प्लांट हरे भरे हो जाएंगे। एक तो इनकी जगह चेंज हो गई है, दूसरा ये कि इनको अच्छे से पानी मिलेगा और तीसरी बात ये कि ऊपर ना इनके छाँव है, साया है। मतलब एक तो ये हमने चादरें बांधी हुई हैं जो इनके रास्ते बंद किए थे, और दूसरी बात ये कि ये बड़े प्लांट हैं तो बड़े प्लांट के नीचे ये आ जाएंगे तो इनको छाँव मिलेगी और ये ख़राब नहीं हो जाए। नहीं करो मुफाचा, नो नो, ये कैची ये देखें प्लांट की वजह से आज इनकी बड़ी खुशी है। आज है जुम्मा मुबारक और आज है मई के महीने का पहला दिन। आज फर्स्ट है, आज शायद लेबर डे भी है, मजदूर डे आज मनाया जाएगा। और ये महीना ना मेरे लिए कुछ स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि एक तो इस महीने में ईद आ रही है और दूसरा जो स्पेशल है वो ये इस महीने में मेरी बर्थडे आ रही है। और मैं आपको बताती हूँ कि मेरी बर्थडे कब होता है। मेरी बर्थडे होती है 28 मई को। 28 मई को मेरी बर्थडे है और मैंने सोचा था कि जब महीना स्टार्ट होगा, 1 मई होगा, तो मैं 1 मई से मतलब इस टॉपिक से मैं ज़रूर एक व्लॉग बनाऊँगी। अच्छा, मुझे आज ना आप लोगों से कुछ बातें करनी है। मेरी कुछ बातें ये हैं कि मैंने मतलब जब अपना चैनल बनाया तो मैंने जैसे ना वीडियो बंदा अपलोड करता है और लोगों को, अपने सब्सक्राइबर को कहता है कि मुझे सपोर्ट करें या मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो उसके साथ मैंने ये कहा था कि दुआ करें कि मेरा चैनल जो है ना ईद तक मोनेटाइज हो जाए। यानी कि जो पिछली ईद थी, जो रमज़ान के महीने वाली ईद थी, वो तो गुजर चुकी, लेकिन जो आने वाली ईद है तो मेरा दिल था कि उस ईद तक मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो आज मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि मई का महीना स्टार्ट हो गया है। आज मई की यकम है और 28 को मेरी बर्थडे है और इसी डेट में आगे पीछे ईद भी है। मतलब कोई कह रहा है कि 27 को ईद है। अगर ईद 27 को हुई तो फिर ईद के सेकंड डे मेरी बर्थडे होगी 28 को। तो मैं चाहती हूँ कि इस मई के महीने में मेरा जो वॉच टाइम है वो मुकम्मल हो जाए, मतलब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और मैं यानी कि ना। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि एक यूट्यूबर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, उनकी बर्थडे थी तो उन्होंने अपनी बर्थडे से पहले एक व्लॉग बनाया और उस व्लॉग में उन्होंने कहा कि मेरी बर्थडे आ रही है, जिसका जो दिल करता है वो मुझे गिफ्ट भेजे। लेकिन मैं उससे थोड़ी डिफरेंट हूँ। थोड़ी क्या मतलब, मैं काफ़ी डिफरेंट हूँ, मैं काफ़ी अलग सी हूँ। मतलब मुझे इन सब का कोई शौक़ नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों से पता है आज क्या रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं कहती हूँ कि मेरी बर्थडे आ रही है, मैं चाहती हूँ कि मेरी बर्थडे पे मेरा ये जो चैनल है ना वो मुझे गिफ्ट में मिल जाए। और वो मुझे गिफ्ट में कैसे मिलेगा? क्योंकि अब आप लोग सोचेंगे कि ये चैनल तो है ही मेरा, ये आप लोग मुझे गिफ्ट में कैसे दे सकते हैं? आप लोग मुझे ये गिफ्ट में ऐसे दे सकते हैं कि आपसे जितना हो सके मेरी वीडियोस को देखें
मेरी वीडियोस को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, फिर चाहे वो आपकी फैमिली है। एक तो पता नहीं मेरा मास्क क्यों नहीं टिकता, जब मैं बात करती हूँ नीचे उतर जाता है। तो चाहे वो आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, कोई भी आपके रिश्तेदार हैं, कोई भी अपना पराया, उनके साथ मेरे व्लॉग को शेयर किया करें और कोशिश किया करें कि मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा करें। एक अच्छा सा प्यारा सा क्यूट सा कमेंट किया करें, लाइक किया करें, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बर्थडे तक मेरा ये जो YouTube चैनल है ये मोनेटाइज हो जाए। और ये मोनेटाइज तब होगा जब मेरा वॉच टाइम मुकम्मल होगा, और मेरा वॉच टाइम जो है वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ। तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मेरा वॉच टाइम मुकम्मल नहीं हुआ। अच्छा, एक आपका और मतलब मैं आपका बता देती हूँ, मतलब आप लोगों ने मेरे से पूछा था कि आप किसी व्लॉग में ये बताएं कि मेरा वॉच टाइम कितना हुआ है, मतलब इस टॉपिक पे बात करें। तो चले मैं आपसे ये बात भी कर लेती हूँ। मेरा वॉच टाइम हो गया है 2500 घंटे हो गए हैं, और अब जो मेरा वॉच टाइम रहता है वो 1500 रहता है, मतलब 1500 अभी बाकी है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करें ना तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पाक पे पूरा यकीन है, मेरे अल्लाह की मदद से, और अगर आप लोगों ने सपोर्ट की तो फिर इंशाल्लाह मेरा चैनल ज़रूर मोनेटाइज होगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब भी दे देती हूँ। मुझसे काफ़ी दिन ये कमेंट आ रहे थे कि आप व्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रही, आप किधर हैं, आप कहाँ गायब हो गई हैं, आपका व्लॉग नहीं आ रहा, मतलब खैर है, सब ठीक है। तो मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रही थी। असल में बात ऐसी था, सबसे पहली बात यह है कि मेरा दिल कुछ खफा सा था, और जब मेरा दिल साथ ना दे रहा हो ना, फिर मेरे से कोई काम नहीं होता। वो कहते हैं ना कि इंसान कुछ भी करता है तब करता है जब वो अंदर से खुश हो, लेकिन यकीन करें मेरा दिल इतना खफा था, मैं इतनी परेशान थी कि मेरे से व्लॉग नहीं बन पा रहे थे। वरना जब मैंने ये वाला यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो मैंने ये मतलब अपने आप में ये फैसला किया था कि मैं हर दिन डेली व्लॉग अपलोड किया करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बीच में से मतलब मेरे से एक दिन स्किप हो जाता, फिर मैं नेक्स्ट डे अपलोड करती। पहले कुछ दिन आप लोगों ने नोट किया होगा कि ऐसा चल रहा था, एक दिन व्लॉग आ रहा था, फिर एक दिन छोड़ के फिर मतलब एक दिन बाद फिर आता था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मतलब एक हफ्ते से तकरीबन व्लॉग आना ही बंद हो गया। तो इसका पहला रीज़न ये था कि मैं कुछ खफा सी थी, बस कुछ मसला था, और इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। और दूसरी बात ये कि मेरे पास इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू होता है। मतलब मैं फ़र्ज़ करें कि मुझे सुबह या शाम को हर हाल में ऊपर छत पे जाके व्लॉग अपलोड करना है, और ये नहीं कि मैं छत पे जाऊंगी और मैं अपलोड करूंगी फ़ौरन से हो जाएगा, नहीं, कम से कम 1.5 से 2 घंटे या कभी 2 घंटे से भी क्रॉस कर जाते हैं, मुझे खड़ा होना पड़ता है और व्लॉग अपलोड करना पड़ता है। और व्लॉग अपलोड करने के लिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि मोबाइल को सामने रखो और उसकी स्क्रीन को बंद ना होने दो। अगर स्क्रीन बंद हो गई तो वो व्लॉग अपलोड होना स्टॉप हो गया। जब तक स्क्रीन मतलब उसकी ऑन रहेगी तो व्लॉग अपलोड होता है। 15-15, 20-20 मिनट भी यकीन करें गुजर जाते हैं ना, और मेरा व्लॉग 6%, 7% इतना हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। तो व्लॉग मेरा ना आने की पहली वजह ये थी कि मेरे दिल का खफा होना, और दूसरी वजह ये थी कि मेरा इंटरनेट का इशू, और तीसरी वजह ये थी कि जब दिल साथ नहीं दे रहा था, जब सब कुछ नहीं हो रहा था, तो बस मैं खुद भी कुछ सुस्ती हो रही थी। सोच रही थी कि आज बनाऊंगी, कल से शुरू करती हूँ, परसों से शुरू करती हूँ, लेकिन मेरे से रह जाता था। एक काम जब हम करते हैं ना और उसको कंटिन्यू करते हैं तो फिर हर हाल में हम उसको करते रहते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हम बीच में अगर छोड़ देते हैं ना तो फिर मतलब कुछ इस तरह हमें आदत सी पड़ जाती है कि चलो अब जो चीज़ छूट गई तो फिर वो छूटती चली जाती है। तो मैं खुद भी इस चीज़ के खिलाफ हूँ और मैं सबको भी कहती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पे ना मैं आपसे एक बात क्लियर करती हूँ। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो सुबह देर से उठते हैं तो उनसे फजर की नमाज रह जाती। अच्छा, उनसे फजर की नमाज रह गई तो वो बोलेंगे कि नहीं हमारे से फजर की रह गई, हमारा तो पूरा दिन ही बर्बाद हो गया, हमसे नमाज रह गया। वो फिर क्या करते हैं कि बाकी नमाजें भी नहीं पढ़ते। तो आप लोग ऐसा मत करो, जो आप पढ़ सकते हो ना, जोहर, असर, मगरिब, इशा, आप वो तो पढ़ो।
क्योंकि फजर की अगर आपसे रह गई तो फिर जो बाकी आप छोड़ रहे हो तो वो फिर आप जानबूझ के छोड़ रहे हो। आप लोग ऐसा मत किया करो। मैं मतलब दूसरों को भी इस चीज का कहती हूँ और खुद भी मैं इस बात पे अमल करती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये वाला जो महीना है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा मेरे लिए ख़ास है। एक तो ईद आ रही है, क्योंकि मैंने कहा था कि दुआ करें कि ईद तक मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। और यहाँ पे यूट्यूब पे एक अंकल हैं जो कि मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, और भी मेरे बहुत सारे भाई हैं, बहनें हैं, जो भी हैं मुझे नहीं पता मतलब, लेकिन जो भी हैं सब अल्लाह के बंदे और बंदियाँ। मैंने सबसे ये रिक्वेस्ट की थी कि ईद तक मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो 2 चीज़ें इस महीने में आ रही हैं, एक आ रही है ईद और दूसरी आ रही है मेरी बर्थडे। तो मुझे अपनी बर्थडे पे आप सबसे ये गिफ्ट चाहिए कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे सब ज़रूर सपोर्ट करेंगे, ज़रूर मेरा साथ देंगे, मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें ताकि मेरा जो वॉच टाइम है जल्दी से कंप्लीट हो जाए। और अभी आपको पता है थोड़ा सा रहता है, 2500 मुकम्मल हो गया है, सिर्फ 1500 बाकी है। तो आप लोग अगर मेरा साथ देंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ये जो 1500 बाकी है ना ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब वक्त ही नहीं लगेगा। और क्या पता, मतलब मैं ईद का और अपनी बर्थडे का कह रही हूँ, क्या पता मेरा रब चाहे और आप लोग मेरा साथ दें तो मतलब इनसे पहले ही मेरा ये चैनल हो जाए, मोनेटाइज हो जाए। तो बस वॉच टाइम मुकम्मल हो जाए और फिर इंशाल्लाह मोनेटाइज हो जाएगा। और बाकी आप सब सुनाएं, आप कैसे हैं, आपके अम्मी अब्बू कैसे हैं, बीवी बच्चे कैसे हैं, अपने पराए कैसे हैं और आपके दुश्मन कैसे हैं। और बाकी अपना ख्याल रखा करें, खुश रहा करें, खुशियाँ बांटा करें, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ नहीं पता। और एक और बात बताऊं, अपने अल्लाह को राज़ी रखा करें, क्योंकि जब रब राज़ी तो सब राज़ी।